Welcome back and thank you so much for joining me. In this video, we are checking with this Pancholi guy. How is he involved with Sushant's death? We'll seek some divine guidance on this. God's angels, archangels, spirit guides, Mother King, Kali, angel, lineage of Super, manipulative spirit of Holy Trinity, guardian angels. Please tell us how is Suraj Pancholi involved with Sushant Singh's Rajput's death mystery. Devil at the center of the card. So is he the devil? Is he the devil who is responsible for his death? Because हमने देखा है कि सुशांत के जितना भी पास्ट में रीडिंग किया है, गाइडेंस किया है, उसमें एक डेविल हमेशा आता रहता है, आपने देखा होगा। और हमने क्वेश्चन पूछा है कि हाउ इज दिस गाय रिस्पॉन्सिबल विद सुशांत डेथ मिस्ट्री, और सेंटर में डेविल आ गया है। तो डेफिनेटली लगता है दिस इज द डेविल गाय जो रीडिंग में आता रहता है। यहाँ तक कि हमने जब वो यूरोप टूर भी देखा था तो किसने प्लान किया था, वो डेविल आया था, और काफी सारे रीडिंग में ये डेविल आता गया है। तो एक क्लियर लिंक इस्टेब्लिश हो रहा है अगर आप देखो कि हाउ इज ही रिस्पॉन्सिबल, ही इज द डेविल। I will lay the cards and I will then take you through it. थिंकिंग मैन आ गया है। थिंकिंग मैन अगर देखो तो आ गया है। So has this devil got in touch with the thinking man, and eventually that led to Sushant's death? Page of sword guys, माइनर आ गया है एट द सबकॉन्शियस लेवल में। एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप इन्वॉल्व इस्टेब्लिश हो रहा है। अगर आप देखो ये थिंकिंग मैन का को हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है सुशांत के रीडिंग्स में आता हुआ। डेविल मैंने बताया है कि सुशांत के रीडिंग में आया है, बट हमने कभी ये डिसाइड नहीं किया कि वो लोग कौन है। We have always talked about a lot of people being involved in this case, but we never got such क्लियर आइडिया कि कौन है। लेकिन आज जो मैं इस बंदे का बात कर रही हूँ तो ये बंदा बिल्कुल एक सेंटर में आके डेविल के फॉर्म में बैठ गया है। ही इज ऑल्सो इन टच विद द थिंकिंग मैन अगर आप देखो तो। Fool is at the back of the deck. There's no clarity at the back of the deck, and there's loss of opportunity, things not working for him and such stuffs. Surrender to denial. He is denying something. He's expecting a miracle. People pleasing है, obsessive thinking है, सो नहीं पा रहा है, stubbornness है, solution है, play है। Let your imagination soar, stay open in all creative ideas about how to pursue a dream or solve a problem. Sushant's death was a solution to their problem. It was a creative solution to their problem, to this person's problem. He has been very stubborn. If you are tensing up or taking a rigid stance about something, gently observe yourself and become more yielding. This will help you communicate more
lovingly with others and yourself. It was a very stubborn decision. This guy is very stubborn and he found कि सुशांत का जो डेथ है वही उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है. एंड दिस गाय हैज बीन वेरी स्टबर्न अबाउट दिस. और अभी खैर वो सो नहीं पा रहा है और उसका चैन खत्म हो गया है और अभी ये उसको लग रहा है कि मिराकल ही उसको कुछ बचा सकता है. ये रिया वाला थिंकिंग आ गया है उसका भी. बट यहाँ पे अगर आप देखो तो सरेंडर द हैबिट ऑफ पीपल प्लीजिंग. ये पीपल को प्लीज भी करता है, तो शायद जिनसे इसको अपना काम निकालना है प्लीज करता है. डेफिनेटली ये पीपल प्लीजिंग में होगा, क्योंकि अगर आप जब तक पीपल प्लीज नहीं करो तो हाउ कैन यू बी अ पार्ट ऑफ अ पर्टिकुलर गैंग. एंड दिस गाय इज अ नेपो किड, so definitely he is into that gang where he pleases people. Otherwise why will he even be a part of the gang? तो पीपल प्लीजिंग इसका क्वालिटी है. अभी डिनायल में है ये. ही इज इन डिनायल. इफ यू सी, accept people and situation exactly as they are without denying the difficulties. They then you can see things clearly and make the best decision. अभी इसको लग रहा है कि problems नहीं है. He is almost like that ostrich who puts their head inside the sand and think कि problems नहीं है, storm नहीं आया है, but इसको शायद पता नहीं है कि इसके life में storm आ गया है and he is in a denial that everything is fine with him. Denial में है ये बंदा. अब ऑब्वियसली डिनायल में है, तभी तो इसको लग रहा है कि इसके लाइफ का एक न्यू बिगिनिंग हो सकता है. ही इज एक्सपेक्टिंग अ मिरेकल और इसको लगता है कि इसके लाइफ का, इसके करियर का न्यू बिगिनिंग इज पॉसिबल, बिकॉज अंडर करंट ऑफ द कार्ड रीडिंग यही है कि ही वांट्स अ न्यू बिगिनिंग. ही इज एक्सपेक्टिंग अ मिरेकल, ही वांट्स अ न्यू बिगिनिंग बिकॉज he doesn't know the gravity of the situation. वो किस मामले में फंस गया है and how long people will chase to find the truth out. उसको पता नहीं है. इसको स्टिल लगता है कि जिन लोगों को ये खुश करता है, जो पावरफुल लोग हैं जिनको वो खुश करता है, वो उसको बचा लेंगे और उसका फिर से करियर संवर जाएगा और एक न्यू बिगिनिंग उसके लाइफ में होगा. बिकॉज दिस इज व्हाट दिस गाय वांट्स. अंडर करंट यही है, बट उसको पता नहीं है. वो डिनायल में है बिकॉज द रियलिटी इज क्लियर टू एवरीबडी कि व्हाट यू आर एंड यू आर प्रोबेबली एक्सपोज्ड. यहाँ पे कार्ड में देखो तो एक इल्यूजन से बाहर निकलने का कोशिश कर रहा है, यानी कि वो डेफिनेटली एक डिनायल में है. उसको भी पता है कि एक डिनायल में है वो और उससे वो फाइट कर रहा है, बट कहीं ना कहीं एक न्यू बिगिनिंग का भी सोच रहा है. किस लिए इल्यूजन है उसको? काफी एक लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी हुआ है. एक मोर्निंग में था, वो मोर्निंग में है, डिप्रेस्ड है, सैड है. इस तरह के सिचुएशन से वो गुजर रहा है अपनी लाइफ में फिलहाल. सेंटर ऑफ द रीडिंग में गाइस आ जाते हैं. यहाँ पे एक डेविल आ गया है. मैंने कुछ पूछा कि हाउ इज दिस गाय रिस्पॉन्सिबल फॉर सुशांत डेथ मिस्ट्री. डेविल है ये, यानी कि जैसा मैंने एक्सप्लेन किया कि एक डेविल जो हमेशा कार्ड में आता है, तो आई फील कॉन्फिडेंट इनफ टू कनेक्ट द डॉट एंड probably and come to this conclusion that this is the devil who has so far showed up in Sushant's death mystery के केस में. इसको डेविल क्यों बनना पड़ा है? क्योंकि इसका अपना करियर आगे नहीं बढ़ रहा था, इसीलिए इसको डेविल बनना पड़ा है. कॉन्शियस लेवल पे ही गॉट इन टच विथ एक थिंकिंग मैन. यहाँ पे आपने देखा है कि हमने इस्टेब्लिश किया है कि सुशांत के डेथ मिस्ट्री में एक थिंकिंग मैन हमेशा है, जो कि क्राइम सीन पे भी दौड़ के पहुंचता है और काफी टाइम से इन्वॉल्व है. तो दिस डेविल गॉट इन टच विद द थिंकिंग मैन एंड देन प्रोबेबली दे डिड समथिंग. सबकॉन्शियस लेवल पे देखिए एक माइनर जो हमने इस्टेब्लिश किया है वो आ गया है. ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक माइनर से रिलेटेड इशू लगता है यहाँ पे. ठीक है, पास्ट में चलते हैं इस बंदे के. तो पास्ट में इसका करियर बिल्कुल काम नहीं कर रहा था. अगर आप देख रहे हो, ये अपने करियर पे मेहनत कर रहा था पर इसको कुछ सफलता नहीं मिल रही थी और इतने डेडिकेशन से भी काम नहीं कर रहा था ये. ओके, इतने डेडिकेशन से ये बंदा काम नहीं कर रहा था और इसका करियर भी कुछ खास फ्लाई नहीं कर रहा था.
काफी इसके कारण उसको स्ट्रेस है। एक कार्ड जो जंप कर गया था वो है स्टार अपोजिट में, यानी कि इसके विश फुलफिल नहीं हो रहे थे, ये जो भी चाह रहा था इसका बिल्कुल काम नहीं बन रहा था। एक मेजर आर्काना का कार्ड है, विच मीन्स कि ही वॉज रियली रियली which means that he was really dissatisfied with the way his wishes were not fulfilling in his career. एक dissatisfaction है at a very deeper level। और कमिंग टाइम्स में फिर उसको क्या हुआ कि एक डिससेटिस्फाइड था वो अपने करियर को लेके, उसके विशेस फुलफिल नहीं हो रहे थे, काफी स्ट्रेस में भी था, उसके कारण वो हाई एंजाइटी डिप्रेशन जोन में था। ही वाज ट्राइंग टू बैलेंस हिज करियर, पर बैलेंस कर नहीं पा रहा था वो। आसपास में उसको कुछ भी होप नहीं दिख रहा था, इस बंदे को कुछ भी ऐसा नहीं था कि वो जिसको होप मिल पाए उसको। एक अपने यहाँ पे भी डिप्रेशन का कार्ड है, यहाँ पे शैडो फेस का कार्ड है, यानी कि कह सकते हो कि काफी फ्रस्ट्रेशन में था ये बंदा, काफी काफी फ्रस्ट्रेशन में था, कोशिश कर रहा था उससे निकलने का आसपास से, पर डिप्रेशन स्टेट एंड मून शैडो विच मीन्स अ वेरी हाई डिप्रेशन जोन में है। तो इस स्टेट में लग रहा है कि ये जो भी लोग होंगे जो कि मून फेज में भी हैं और डिप्रेस्ड स्टेट में भी है, तो आई डोंट, दिस इज जस्ट लाइक कि स्टबर्न बोला है ना, स्टबर्ननेस आएगा ही, क्योंकि आप डिप्रेस्ड भी हो, आप शैडो साइड से भी जा रहे हो, डेविल भी हो, तो ये सारा चीज मिक्स करके डेफिनेटली मेक्स यू अ वेरी स्टबर्न पर्सन हु इज गोइंग टू टेक समबडीज पावर बैक। तो यहाँ पे डेविल भी है, यानी कि ये सुशांत का पावर लेना चाहता था, जो सुशांत जो भी थे उस पे इस बंदे की नजर थी। ये डेविल जो होता है ये किसी का पावर लेना चाहता है, सुशांत के पास जो भी था वो उसको लेना चाहता था, छीनना चाहता था, उनको चेन करना चाहता था, उनको अपना स्लेव बनाना चाहता था सुशांत को ये, क्योंकि इसका अपना करियर आगे नहीं बढ़ रहा था, अपोजिट में आया है। इसका अपना करियर को आगे बढ़ाने के लिए ये सुशांत को टेम करना चाहता था, अपना स्लेव बनाना चाहता था। दैट इज व्हाई ही गॉट इन टच विद द थिंकिंग मैन। बीच में एक माइनर का भी कार्ड आया है, और हाउ इज दिस पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर सुशांत डेथ। तो लास्ट में तो इसको सुशांत के कारण काफी डिप्रेशन होता था, तो वो अपने आप को सुशांत से कंपेयर करता था। यहाँ पे देखिए लास्ट में एक एम्प्रेस का कार्ड आया है, दिस कार्ड इज ऑल अबाउट अबंडेंस एंड ग्रोथ। और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे स्टार अपोजिट में आया है, यानी कि इसका कुछ विश फुलफिल नहीं हो रहा था, कुछ भी करके इसकी काफी एक ख्वाहिश थी, एक विश था उसका। स्टार का कार्ड है, एक विश था, बट वो फुलफिल नहीं हो रहा था। पर डेविल बनने के बाद अगर आप देखो तो उसका विश फुलफिलमेंट हो गया है, ग्रोथ मिल गया है उसको करियर के लिए। ये करियर उसका जो ठीक से चल नहीं रहा था डेविल बनने के बाद और ये सारी चीजें करने के बाद, उसका करियर में ग्रोथ आ गया है। या फिर दिस इज हाउ ही हैड प्लान्ड एंड हाउ ही हैड थॉट अबाउट दिस, बिकॉज दिस इज हाउ ही इज इन्वॉल्व विथ सुशांत डेथ मिस्ट्री, राइट। तो ये उसके अंदर में जो उसने सोचा था और जो उसने किया है, दिस इज व्हाट इट इज। Let's look at the back of the deck and find out the guidance, the energies behind this inner, the devil and stuff. Dear gods, goddess, angels, archangels, spirituals, please tell us the energy behind this cards. Tell us the energy behind this cards. सन का कार्ड उल्टा है और स्टार का कार्ड भी उल्टा है, यानी कि इसके लाइफ में कुछ हैप्पीनेस आ ही नहीं रहा था। And he has killed him for his happiness to turn the sun upside. इसको ऐसा वाइब्स आ रहा है ना कि इसको लगता था कि सुशांत ही इसके रास्ते के पत्थर थे, क्योंकि वो सन देख रहा है पर उसको अपोजिट में देख रहा है, स्टार्स देख रहा है पर उसको भी अपोजिट में देख रहा है, यानी कि इसको लगता था कि अगर ये सुशांत
का जो डेथ मिस्ट्री है जिसका हमने क्वेश्चन किया है, अगर वो हो जाए तो इसका स्टार्स भी शाइन करने लगेगा और इसका सन भी शाइन करने लगेगा। यानी कि ये बंदा सुशांत को अपने पत्थर, रास्ते का पत्थर समझता था, ऐसा वाइब्स आ रहा है मुझे। जस्टिस इन रिवर्स आ गया है इसका, टेम्परेंस इन उल्टा आ गया है, यानी कि कुछ प्लानिंग हुई है यहाँ पे, कुछ तो अल्केमी किया है इन लोगों ने यहाँ पे। तो ये थिंकिंग मैन के पास ये गया अपना विश फुलफिल करने के लिए। यहाँ पे भी आप देखो स्टार का कार्ड है, स्टार कार्ड इज अबाउट विश फुलफिलमेंट। यहाँ पे वो थिंकिंग मैन के पास दौड़ के चला गया है, एंड दिस थिंकिंग मैन लुक्स लाइक हिज गॉडफादर। तो आप अगर देखो तो एक थिंकिंग मैन कौन उभर के आ रहा है, ये भी पिक्चर अब क्लियर हो रहा है, जो कि मैंने बोला था कि धीरे धीरे वी विल गेट क्लोजर टू द सिचुएशन एंड वी विल, एंड द कार्ड्स एंड द डिवाइन हरसेल्फ विल टेल अस, लीड टू क्लूज वेयर वी कैन फाइंड आउट हु द पर्सन इज। तो अगर आप देखो ये इस्टेब्लिश हो गया है डेविल, एंड दिस गाय इज गोइंग एट अ कॉन्शियस लेवल टू अ थिंकिंग मैन। थिंकिंग मैन हमेशा आता रहा है अपने, जो रोतू होते हैं ना बच्चे, जो उनको प्रॉब्लम्स होता है तो वो अपने गॉडफादर के पास दौड़ के चले जाते हैं कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, मुझे सोल्यूशन दो। तो ये दौड़ के उनके पास चला गया है कि मेरा तो सपना तो पूरा नहीं हो रहा, मेरे विशेस फुलफिल नहीं हो रहे। बिल्कुल देखो यहाँ पे भी अपोजिट है और ये भी अपोजिट ही आया था। तो अपने गॉडफादर के पास दौड़ के चला गया है, मेरे प्रॉब्लम सॉल्व करो, मेरा करियर आगे नहीं बढ़ रहा है। तो ये गॉडफादर ने इसका प्रॉब्लम्स लगता है सॉल्व किया है सुशांत के डेथ का, ये बना के। हम्म। Oh my god. This is the death card, guys. This is the death card. Oh my god. Six of Cups. स्ट्रेस का कार्ड फिर से आ गया। अगर आप देखो बैक ऑफ द डेक पे वही सेम कार्ड्स आए हैं यहाँ पे भी। यहाँ पे भी आप देखो बैक ऑफ द डेक में एट ऑफ सॉर्ड आया है, यहाँ पे भी स्ट्रेस वाला कार्ड आया है, यहाँ पे भी टू ऑफ सॉर्ड है। सोच सोच सोच, काफी दिमाग में है ये, दिमाग चला रहे हैं लोग, काफी दिमाग चला रहे हैं। They are in their head, they have lost their grounding and they are just going on planning anything and everything, and they feel कि कुछ भी वो प्लान करेंगे सक्सेसफुल हो जाएगा, लोगों को पता नहीं चलेगा, उसको कवर अप कर देंगे, because they are the powerful people, they can stay in denial and they can just do anything. People pleasing करके वो कुछ भी कर सकते हैं, and that is why they are in denial. All right, this is getting intense. यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि दिस गाय वेंट क्राइंग टू हिज गॉडफादर टू हेल्प हिम विथ हिज करियर, जो कि इसका करियर काफी दिनों से ठीक नहीं चल रहा था, काफी दिनों से इसका करियर ठीक नहीं चल रहा है। ये जो डेविल है इसने एक इनजस्टिस किया है, एक मेजर इनजस्टिस है, कार्ड पे देखो मेजर इनजस्टिस दिस पीपल हैव डन। सुशांत के डेथ से रिलेटेड है, तो इट्स इन लोगों ने, दिस बंदे जिसका रीडिंग हम कर रहे हैं, ये दिस इज द मेन कल्प्रिट। अगर आप देखो तो इनजस्टिस का कार्ड आया है, ही इज द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजर इनजस्टिस टू सुशांत। तो काफी हो सकता है कि ये लोग दीज आर द बिग फिश, दीज आर द मास्टर माइंड्स। एक माइनर का कार्ड आ गया है, देखो माइनर का कार्ड, सुशांत का डेथ का बात कर रहे हैं, ये पर्सन के बारे में कनेक्शन कर रहे हैं, और एक माइनर का कार्ड है सबकॉन्शियस लेवल में है। यहां से ही थिंग्स स्टार्टेड गोइंग रॉन्ग, अगर आप देखो तो सबकॉन्शियस लेवल में एक ग्रज बोल सकते हो कि बैठा हुआ था, जिसका उन्होंने बदला लिया है डेथ करके। एक सबकॉन्शियस लेवल का कार्ड है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, क्वीन ऑफ रॉड्स है।
काफी जो उसको जो शैडो फेज में था, डिप्रेशन स्टेज में था, वहां पे उसने काफी काफी सोचा है, काफी सोचा है, इंट्रोस्पेक्ट किया है, प्लानिंग की है, और दे वेंट टू वन क्वीन ऑफ wands इन रिवर्स। ये देखो, ये है इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड एंड दिस कार्ड इज सीइंग हियर। तो दे फाउंड अ लेडी इन नेगेटिव अवतार। अभी आप देखो, हमने रिया का रीडिंग किया है एंड शी हैज बीन क्लियरली एस्टैब्लिश्ड एज अ क्वीन ऑफ wands इन नेगेटिव। यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ wands इन नेगेटिव ही है, क्वीन ऑफ wands इन नेगेटिव है। ये इंट्रोस्पेक्शन किया है हम लोगों ने, क्वीन ऑफ wands को उन लोगों ने फाइंड किया है as a solution to their problem, and which finally led to his death, which led to his death. सुशांत के डेथ का बात कर रहे हैं और डेथ का कार्ड आया है। दे आर डेफिनेटली द मास्टरमाइंड ऑफ हिज डेथ। और उसके डेथ के बाद उनको इस बंदे को लगा कि उसका करियर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ही विल बिकम सुपर सक्सेसफुल, सुपरस्टार बन जाएगा। ऑब्सेसिव थिंकिंग का भी कार्ड आया था, अगर आप देखो ऑब्सेसिव थिंकिंग है। यहाँ पे मून फेज में है, यहाँ पे हाई डिप्रेशन स्टेट में है, यहाँ पे उसका करियर काम नहीं कर रहा है, करियर आगे नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे भी वो अपने करियर पे फोकस नहीं कर रहा है, ठीक है। all these things are and he is already a devil, all these things are making him obsessive thinking, hell bent on thinking कि this person is responsible for my failure and therefore I should remove this person from my life। obsessive thinking है, क्योंकि उसको लगता है कि उसके उसके करियर पे स्टार इसके वजह से शाइन नहीं कर रहा है। ऑब्सेसिव थिंकिंग, उसको लग रहा है कि उसका सन उसके करियर पे इसके वजह से शाइन नहीं कर रहा है, उसके विशेस फुलफिल इस बंदे के कारण नहीं हो रहा है। तो ऑब्सेसिव थिंकिंग एंड स्टबर्ननेस, एंड एक पीपल प्लीजिंग तो है ही, डिनायल में तो है ही। तो पीपल प्लीज करते करते ये अपने दौड़ के चला जाता है अपने थिंकिंग मैन नाइट किंग ऑफ स्वॉर्ड के पास, टू हेल्प हिम गेट दिस गाय आउट ऑफ हिज वे, विच वॉज अ टोटल इनजस्टिस। इन लोगों ने इनजस्टिस किया है सुशांत के साथ। यहाँ पे देखिए तो एक उसका बैलेंस करने का कोशिश कर रहा था अपने करियर को, बिल्कुल हो नहीं पा रहा था, तो ही बैलेंस नहीं कर पा रहा था, तो ही थॉट दैट दिस हैज बीन गोइंग ऑन फॉर लॉन्ग टाइम, इट्स टाइम टू चेंज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, बीन ट्राइंग टू बैलेंस द करियर फॉर लॉन्ग टाइम, हो नहीं रहा था। सॉरी, ही थॉट ऑफ टर्निंग द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यहाँ पे अगर देखो तो एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इन नेगेटिव अवतार में है, और एक यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपको पता है कि दिस इज द लेडी, एंड यहाँ पे एक 2 ऑफ कप्स इन रिवर्स है। आई डोंट नो इफ दिस गाइज वर इन रिलेशनशिप और समथिंग, क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा है वर दे इन रिलेशनशिप ऑफ समथिंग, या हो सकता है वो लोग फ्रेंड्स होंगे, क्योंकि 3 ऑफ कप्स भी आया है यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये लोगों ने काम करते करते, जब ये बंदा काम कर रहा होगा अपने करियर पे, तो ये आई थिंक क्वीन ऑफ पेंटिकल से वो मिला होगा, वहां पे ही कुछ प्लानिंग हुई है मुझे लगता है। इसका करियर में ध्यान तो लग नहीं रहा था, ही वॉज नॉट वर्किंग, उसको सक्सेस मिल भी नहीं रहा था, वहां पे वो क्वीन ऑफ पेंटिकल से मिला, फिर काफ़ी लोग मिले। 3 ऑफ कप्स इन नेगेटिव है और 2 ऑफ कप्स भी है, यानी कि जो भी इन लोगों के हाई सोसाइटी में होता है कि रिलेशनशिप है भी नहीं भी है, एक टाइम पास रिलेशनशिप, एक लिव इन रिलेशनशिप और व्हाटएवर इट इज, दैट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप दे वर इनटू, एंड दैट इज वेयर समवेयर दिस प्लानिंग हैज बीन मेड, क्योंकि एक डेविल ने प्लान किया था उनके यूरोप टूर का, अगर आप याद रखो तो।
ठीक है, तो डेविल हैड प्लान द ईयर टू। तो यहाँ पे दो लोग आ गए हैं, अगर आप देखो तो दो लोग क्लियरली आ गए हैं। एक this guy is the devil and this devil runs to this thinking man, तो इसका ये गॉड फादर, दो लोग क्लियरली इस रीडिंग में इस्टेब्लिश हो गए हैं टू पुश हिज करियर टू ग्रोथ। और यहाँ पे एक अगर आप देखो तो काफी एक स्टबर्ननेस है और ऑब्सेसिव थिंकिंग है, पीपल प्लीजिंग है, जो कि बिल्कुल एक स्पॉट ऑन क्लियरली डॉट्स कनेक्ट हो रहा है। एंड एक क्रिएटिव सॉल्यूशन उन लोगों ने अपने फाइंड किया। उनका सारा प्रॉब्लम सुशांत था, तो उसका एक सॉल्यूशन उन्होंने क्रिएटिव सॉल्यूशन निकाला है, हिज डेथ, सो दैट ही कैन स्टार्ट हिज न्यू करियर। उसको यही लग रहा था कि the stars are not shining in his career and the sun is not shining bright in his career because of सुशांत। और एक बार जब सुशांत को फिक्स कर देंगे, उसका क्रिएटिव सॉल्यूशन निकालेंगे, तो all these things will start happening। स्टार्स उसके करियर पे शाइन करने लगेगा, सन शाइन करने लगेगा। This kind of obsessive thinking these people have shown to do what they did to him. Really a sad reading, guys, but this is what it is. Do let me know what you feel about the guidance. Thank you so much for watching.